Hello everybody. The topic I'm going to explain to you is GDP as a measure of standard of living, and before that I would suggest all of you to get these three books which are really important for you and you must have them. Number 1 is Comprehensive Economics A2 level, and number 2 is Topical Paper 3, and number 3 is Topical Paper 4. So these are three books which will definitely help you whenever you study and you sit on table and you start studying, then you must have these three books with you. First of all, listen to the lecture, then read the topic from Comprehensive Economics, have a look on topical MCQs relevant to this chapter, and afterwards you must have a look on the topical paper 4, which contains long questions and case studies. So now moving to the topic, and the topic is GDP as a measure of standard of living. Okay, जब हम standard of living over time कहते हैं तो इसका मतलब है कि we are going to discuss about the standard of living of a certain country during given range of time. Or when we talk about comparison of standard of living between countries, when we then we compare standard of living of multiple countries at a given point of time. ठीक है, तो इसको लिख लें, standard of living की definition पहले लिख लें. Standard of living refers to इस पे बेशक आप 3 स्टार्स लगा लें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है 13 मार्क्स के लिए और 25 मार्क्स दोनों के लिए जी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग refers to the quality of life or well-being of the nation. जी, standard of living is generally measured on the basis of GDP. A rise in GDP shows rise in standard of living. Fall in GDP shows fall in standard of living. Because rise in GDP means GDP is basically proxy for income. ठीक है, rise in GDP का मतलब है income rise हो रही है. अगर लोगों की income rise हो रही हो, then why their standard of living increases? In GDP is the proxy for income. तो GDP लिख लें या income लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है. Because rise in income increases purchasing power to enjoy better quality of life, better quality products, better quality products in large quantity. जी, तो आपके पास ऑप्शन होती है जी. जी, people can afford better housing, medical, education and nutrition with high income. जी, अगर इनकम हाई होगी तो लोग ये सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की इंजॉय कर सकेंगे. जीडीपी स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज में कैलकुलेट हो रहा होता है, उसकी वैल्यू ही रिलायबल नहीं होती, जो फिगर है वो एक्यूरेट नहीं होती, उसमें इश्यूज होते हैं. क्या इश्यूज होते हैं? अच्छा, लेकिन एक तरफ हमें नजर आता है कि इफ देयर इज राइज इन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स देन इट शोज बेटर हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशनल फैसिलिटीज फॉर देम. लेकिन दूसरी तरफ हम इस पे क्वेश्चन भी अराइज करेंगे, क्या होगा? However, in many countries, especially developing nations, GDP is not calculated accurately due to जी, क्या रीजंस होती हैं क्यों नहीं सही कैलकुलेट होता? नंबर 1 इज, इस तरह बुलेट पॉइंट्स बना लें. ड्यू टू नंबर 1 इज लैक ऑफ क्वालिफाइड रेलेवेंट स्टाफ. अगर ऐसा होगा तो फिर डेफिनेटली जो कैलकुलेशन है वो इतनी रिलायबल नहीं होगी. Lack of availability of data. Economies are not documented. Not documented का मतलब है कहीं रिकॉर्ड ही नहीं हो रही होती चीजें. अच्छा, सही. Unreachable areas, unreachable and no go areas. बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां आप इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से या पहुंच नहीं सकते या फिर आपको अलाउड नहीं होता. लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं वहां पे, जैसे ट्राइबल एरियाज होते हैं. डबल काउंटिंग ऑफ ट्रांसफर इनकम, इसको देख लेते हैं. ट्रांसफर इनकम, प्रॉब्लम ऑफ इलीगल इनकम्स लाइक स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग.
जी, इस तरह के इश्यूज आते हैं काफ़ी। जी, लैक ऑफ sophisticated machinery एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, ये तो हमने देखा इसकी क्यों वाई इट्स एक्यूरेसी इज क्वेश्चनेबल। अब अगर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इतने ज़्यादा इश्यूज आते हैं, डबल काउंटिंग का आप लोग पूछ रहे थे। डबल काउंटिंग का ये होता है कि कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो असल में हमारी इनकम नहीं होती, किसी और की इनकम होती है, बट वी कीप काउंटिंग इट एज आवर ओन इनकम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपने तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, वो आपके लिए ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम का या ट्रांसफर पेमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसी इनकम या ऐसी पेमेंट्स जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सचेंज के तौर पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज ना हुई हो। ठीक है, लाइक जैसे आप लोगों ने कोई सर्विस तो नहीं दी पेरेंट्स को, ना ही आपने कोई जॉब की है, ना ही कोई आपने प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, फिर भी आपको जो इनकम जनरेट हुई पॉकेट मनी के तौर पे, वो आप अगर इनकम में उसको अकाउंट फॉर करेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसी तरह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि लाइक जैसे डोनेशंस होती हैं, ठीक है, और साथ में गवर्नमेंट जैसे जिस तरह चैरिटीज होती हैं, वो भी बेसिकली डबल काउंटिंग में आती हैं अगर आप उसको कैलकुलेट करते रहेंगे, क्योंकि वो कोई और अर्न कर चुका था, जिसने अर्न किया उसने अपने इनकम का पार्ट ऑलरेडी उसको बना दिया था। इफ यू आर अगेन डूइंग इट देन यू आर इन्वॉल्व इन डबल काउंटिंग। तो इतने ज्यादा इश्यूज होने के बावजूद फिर क्या करना चाहिए, कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये होगा? अगर जीडीपी की फिगर इतनी गलत है फिर हम क्या करें? ओके, सो जीडीपी, since GDP figure is unreliable, so economists suggest to account for other factors as well. Real GDP per capita चाहिए, real GDP per capita का मतलब होता है per head, और real का मतलब होता है after removal of distorting effect of inflation। रियल जीडीपी वैसे कल हमने काफी डिस्कस कर लिया था, फिर भी कंफ्यूजन रहती है बच्चों के माइंड में। अगर कंफ्यूजन किसी को हो तो वो पूछ सकते हैं दोबारा से। रियल जीडीपी पर कैपिटा हम देखेंगे, और वी कन्वर्ट बेसिकली जीडीपी टू कॉमन करेंसी। जी, उसके अलावा हम क्या चीज कंसीडर कर रहे होते हैं? रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी देख रहे होते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर टू द जीडीपी। इसी तरह से पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जनरली डिपेंड करता है बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे और नेट माइग्रेशन पे। अच्छा, ये काफ़ी सारी मेजर्स हैं जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू जीडीपी के, चूंकि जीडीपी। अच्छा, इसका जब भी क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चरिंग इसी तरह रहेगी जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। क्या स्ट्रक्चरिंग रहेगी? वो पूछता वो ये है कि डिस्कस वेदर जीडीपी इज गुड मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आप क्या कहेंगे? पहले बताएंगे कि जीडीपी क्या चीज़ है। जीडीपी पहले बताएंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मीनिंग क्या है, फिर बताएंगे कि जीडीपी कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप बताएंगे कि क्यों ये शो नहीं करता सही, क्योंकि इसकी इनएक्यूरेसी के इश्यूज आते हैं। डिस्कस क्वेश्चन होता है दोनों साइड। एक तरफ आप बताएंगे कि जीडीपी शो करता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप बता रहे होंगे कि नहीं ये नहीं शो करता, तो फिर उसके लिए आप उसकी अगेंस्ट बात करेंगे कि जीडीपी करेक्टली पहले तो अकाउंट फॉर नहीं हुआ होता, कैलकुलेट नहीं होता, उसके क्या रीजंस हैं वो बताएंगे जो ऊपर बुलेट पॉइंट्स में बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि अगर जीडीपी एक अच्छा मेजर नहीं है तो फिर आपकी नज़र में क्या करना चाहिए। फिर ये सारे फैक्टर्स आप लिखेंगे, एंड पे फिर कल कंक्लूजन देना होगा। ओके, सो रियल जीडीपी पर कैपिटा के पॉइंट में आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि सिर्फ जीडीपी बढ़ जाने से कुछ नहीं होगा, डिपेंड करता है कि रियल जीडीपी पर हेड पे क्या फर्क पड़ा है। रियल जीडीपी एक्चुअल परचेजिंग पावर को शो करता है। इस पॉइंट को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप क्या एग्जाम्पल यूज करेंगे? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 यूज करेंगे। मैं नीचे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जी, एग्जाम्पल 1। अच्छा देखिए, पॉइंट्स मेंशन कर देना सफिशिएंट नहीं होता, पॉइंट्स को डेवलप करने के मार्क्स होते हैं। तो पॉइंट को डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर जीडीपी डिफ्लेटर। जी, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? ओवर बेस प्राइस इंडेक्स। ठीक है जी। 200 डिवाइडेड बाय 100, जो रिसेंट होता है वो करंट ईयर का होता है, करंट प्राइस इंडेक्स, जो पीछे का बेस ईयर। और एक चीज और भी ध्यान में रखें, बेस ईयर हमेशा 100 के इक्वल होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। सही है। और फिर रियल जीडीपी क्या होगा आपके पास? यहाँ पे इधर ही वैल्यू में डाल दो। नॉमिनल जीडीपी आपका रिसेंट ईयर क्या हुआ है? 100,000 हुआ है। रिसेंट ईयर का यानी करंट ईयर का जीडीपी 100,000 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 50,000 आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि हमें नजर आ रहा है कि रियल टर्म में कोई फर्क नहीं। पिछले साल भी आपका 50,000 था, इस साल भी अगेन 50,000 है। तो रियल टर्म में आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर रियल टर्म में फायदा नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर नहीं होगी। तो एक पॉइंट को डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा इतना झंझट करना पड़ता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट इस तरह भी कर लेता हूँ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसकी फर्दर ट्रांसलेशंस क्या है। ये जो रियल जीडीपी है इसकी फर्दर ट्रांसलेशंस क्या हो सकती हैं? जी, यहाँ पे वैसे लिख लें फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, रियल जीडीपी की ट्रांसलेशन क्या है लाइक फर्दर। रियल जीडीपी को मैंने जैसे लिखवाया ना यहाँ, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। इसको हम ऐसे भी तो ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स फर्दर डिवाइडेड बाय बेस प्राइस इंडेक्स। ऐसे लिख सकते हैं ना कि डिफ्लेटर की वैल्यू। अब इसको और कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है? और इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप ये भी लिख सकते थे कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय बेस प्राइस इंडेक्स। ऐसे भी ट्रांसलेट हो सकता है ना, मल्टीप्लाई बाय बेस प्राइस इंडेक्स। मैथमेटिकली ये बात समझ आती है कि क्यों ऐसे हो रहा है। और क्या ट्रांसलेशन हो सकती है फर्दर इसकी? फर्दर हो सकता है कि वो इस तरह भी लिख ले कि बेस प्राइस इंडेक्स ओवर करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, इन सारी चीजों का मीनिंग एक ही है, सब एक ही चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है। बट एग्जामिनर, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये वाला फार्मूला ज़हन में रखा हुआ था, ये वाला फार्मूला आपके माइंड में था, लेकिन आप आंसर में ढूंढते रहेंगे। अगर ये फार्मूला उसने दिया नहीं है, ये ट्रांसलेशन दे दी, ये वाली दे दी, या फिर ये वाली ट्रांसलेशन दे दी, या ये दे दी, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सो सिंपली आप उस फार्मूला को देखिए, उससे फर्दर कैसे ट्रांसलेट हो सकता है। एग्जामिनर हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन में ये वाली ऑप्शन गिवन हो, लेकिन आप ये वाली ऑप्शन ढूंढ रहे हो, मिले ना, तो आपको लगेगा कि ये फिर सवाल ही गलत है। तो ज़हन में रखना है आप लोगों ने। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये पहले पॉइंट को हमने डेवलप किया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? कन्वर्जन ऑफ जीडीपी टू सम कॉमन करेंसी। जैसे इसमें आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि जीडीपी जो है यूएसए में, ज़ाहिर यूएस डॉलर्स में कैलकुलेट हो रहा होता है, पाकिस्तान में पाक रुपीज में हो रहा होता है, यूके में यूके पाउंड्स में कैलकुलेट हो रहा होता है। तो ये कैसे शो कर सकता है इक्वल मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को? पहले आपको सब कंट्रीज की जीडीपी को कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा एक्सचेंज रेट के थ्रू। जब आप कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि जीडीपी यूएसए का इन डॉलर्स कितना है, जीडीपी पाकिस्तान का इन डॉलर्स कितना है, और यूके का कितना है। सो अगेन यू कैन यूज दैट फिगर टू फाइंड आउट कि कौन सा कंट्री बेहतर है, कौन सा नहीं है। जी, और इसी तरह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हम देखते हैं। बाज़ वक़्त प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, जीडीपी बढ़ने के बावजूद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं होती, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें बाय नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर टू द जीडीपी। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है हर सेक्टर से आने वाली इनकम को या आउटपुट को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेट्स से कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। प्राइमरी सेक्टर से मुराद है लाइक एग्रीकल्चर जैसे हो गया, तो इसकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होती है। जहाँ पे कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा मिल रही हो,
उन कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है। टर्शियरी सेक्टर जहाँ पे ज्यादा होता है वहाँ का एनवायरनमेंट सोफिस्टिकेटेड ज्यादा होता है, वहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ज्यादा होती हैं, हेल्थ इश्यूज कम कॉज होते हैं। इसी तरह से पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बर्थ रेट, डेथ रेट और नेट माइग्रेशन पे डिपेंड करता है। बर्थ रेट, डेथ रेट अगर कंट्रोल्ड है, ठीक है, और नेट माइग्रेशन भी अगर हमारे पास नेगेटिव नेट माइग्रेशन नहीं है और किसी किस्म का ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर बर्थ रेट, डेथ रेट और नेट माइग्रेशन हमारे पास नेगेटिव है और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो अगेन ये पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ को शो करेगा। हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग, ये भी बेसिक चीज़ें हैं। और नंबर ऑफ पीपल पर डॉक्टर की, एक डॉक्टर कितने लोगों को ट्रीट करता है, इसमें आप एग्जांपल दे के कह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर अगर 10 लोगों को एक जगह पे ट्रीट कर रहा है, दूसरी जगह पे एक डॉक्टर 100 लोगों को ट्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब है जहाँ पे 10 लोगों को ट्रीट कर रहा है वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। नंबर ऑफ ड्यूरेबल पर पर्सन, ड्यूरेबल से मुराद होता है लॉन्ग लास्टिंग चीजें, ऐसी चीजें जो हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। लाइक फर्नीचर, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए ड्यूरेबल्स, कार होगी, मोबाइल फोन हो गया, ये सारी ड्यूरेबल्स हैं। पर पर्सन अगर ड्यूरेबल ज्यादा कंज्यूम हो रही है तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। अगर पर पर्सन ड्यूरेबल्स कम यूज हो रही है तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नेटवर्क ऑफ रोड्स आ जाता है, ब्रिजेस एंड अंडर पासिस, ये चीज़ें आ जाती हैं, ये भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में पोल्यूशन और सोफिस्टिकेशन एंड एनवायरनमेंट की बात होती है। अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इनकम लेवल कम भी होगा तब भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम ज़्यादा है बट यू आर लिविंग इन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, तो क्या होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और लेकिन अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करें, कम क्वांटिटी में यूज करें होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाएगा। डिस्पैरिटीज का पॉइंट जो है इसका हम थोड़ा सा फर्दर डेवलप करते हैं। डिस्पैरिटीज का क्या मतलब होता है? डिस्पैरिटीज के आगे आप लिख लें एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए हम बस 2 मिनट में लगाऊंगा ताकि आप लोग वेल ऑन टाइम फ्री हो जाएं अगली क्लास के लिए। डिस्पैरिटीज का मतलब है इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। डिस्पैरिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए लॉरेंस ने अपना फिनोमेना दिया था। लॉरेंस एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, लॉरेंस को उसने यूज किया था इसके लिए। लॉरेंस ने ये बोला था कि अगर हम 100% पॉपुलेशन में, यहाँ पे हम लेट्स से पॉपुलेशन ले रहे हैं ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पे हम इनकम ले रहे हैं, अगर 45 डिग्री लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये 45 डिग्री लाइन ये शो करेगी कि 100% इनकम जो है 100% लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज 100% इनकम, दिस इज 100% पॉपुलेशन। अगर 100% इनकम 100% पॉपुलेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इस तरह से 45 डिग्री लाइन बनती है। लेकिन कोई भी कंट्री दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा डिस्पैरिटीज पे काम हो रहा हो कि वहां पे 100% इनकम 100% लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। लॉरेंस का कहना यह था कि अगर हम देखें तो जनरली ट्रेंड इस तरह से क्रिएट होता है कि हम इस 45 डिग्री लाइन से डाइवर्ज करते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है जिसको हम लॉरेंस कर्व कहते हैं। जी, यहाँ पे एक एरिया डेवलप हुआ है, इसको मैं एरिया ए का नाम दे देता हूँ, इसको एरिया बी का नाम दे देता हूँ। उसने भी यही एग्जाम्पल में यूज किया था लॉरेंस ने। लॉरेंस का कहना ये था कि फिर हम जिनी कोफिशिएंट अगर फाइंड करें, जिनी कोफिशिएंट, जिनी कोफिशिएंट होता है एरिया ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। एरिया ए जितना ज्यादा बनेगा उतनी ज्यादा डिस्पैरिटीज को शो करेगा, इनकम गैप को शो करेगा। ठीक है, क्या होगा, उतनी ज्यादा इनकम गैप आपका बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा इनकम गैप होगा वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टोर्ट करेगा। हायर जीडीपी भी बेटर क्वालिटी को शो नहीं करेगा। हायर जीनी कोफिशिएंट के लिए जीसी मैं वैसे यूज करूँ। जीनी कोफिशिएंट मींस ग्रेटर डिस्पैरिटीज, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ओके। और अगर जी
जीनी कोएफिशिएंट कम होगा तो उसका मतलब है कम डिस्पैरिटीज होंगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। इसी की सपोर्ट में कजनेट ने भी बात की थी। कजनेट ने ये कहा था कि जी जी जी, ये कर्व आपको वहां बनाना होगा आंसर में। अच्छा, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स में जब आप देखेंगे तो इसमें जस्ट उसका रेफरेंस दिया हुआ है, ये ग्राफ्स पीछे बने हुए थे। आप चैप्टर नंबर 8 में, फिर आप जैसे आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आपको मिलेगा जाके, यहाँ पे सिर्फ डिस्पैरिटीज में मेंशन हुआ होगा। चैप्टर नंबर 8 में चले जाएंगे तो चैप्टर नंबर 8 में आएगा। अच्छा, कजनेट कर्व जो है ये बेसिकली किस तरह का दिखता है। सॉरी, आप लोगों का टाइम काफी निकल गया आगे। बस मैं जल्दी से इसको बना देता हूँ। कजनेट ने बेसिकली इस तरह से ग्राफ बनाया था और उसका ये कहना था जी, जीडीपी पर कैपिटल, जीडीपी पर कैपिटल इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब है जिनी कोएफिशिएंट। यहाँ पे जिनी कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब है इनकम गैप जो है अमीर और गरीब का। इस ग्राफ पे अगर एक सेकंड के लिए फोकस कर लें, बाद में इसको नोट कर लें। इस ग्राफ में क्लियरली ये नजर आ रहा है कि जीडीपी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से शुरू में इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये वापस कम होना शुरू हो जाती है। क्यू की इक्वल था लेट से, तो आप देख सकते हैं जिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू या फिर इनइक्वालिटीज इतनी होंगी, ठीक है। और फिर आपका जब जीडीपी बढ़ा इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि जिनी कोएफिशिएंट बहुत हाई है या फिर इनइक्वालिटीज के लिए बहुत हाई है। लेकिन जब आपकी इनकम या जीडीपी पर कैपिटा यहाँ तक चला जाता है, Q1 से Q2 की तरफ चला जाता है, तो ये डिस्पैरिटीज वापस कम होना शुरू हो जाते हैं, जिनी कोएफिशिएंट कम होना शुरू हो जाता है। जी, ऐसा क्यों होता है? इसके लिए उसने रूरल अर्बन माइग्रेशन की एग्जांपल यूज की थी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ये एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ, आप ये हिंट के तौर पे रूरल अर्बन माइग्रेशन का पॉइंट लिख लें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके माइंड में रहेगा कि सिंपल सी बात है। अच्छा देखें, जब कंट्रीज डेवलप करती हैं तो शुरू में उनमें डिस्पैरिटीज, लोगों की इनकम में गैप क्यों बढ़ता है, फिर एक खास टाइम के बाद वो गैप क्यों रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसके लिए रूरल अर्बन माइग्रेशन के थ्रू ही उसने एक्सप्लेन किया था। उसी एग्जांपल को मैं लेके चलता हूँ। जब रूरल एरियाज से लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आते हैं तो शुरू में उनके पास अवेयरनेस भी नहीं होती, क्वालिफिकेशन और स्किल भी नहीं होता। तो इंडस्ट्रियलिस्ट उनका फायदा उठाते हैं। किस तरह फायदा उठाते हैं कि उनको लो वेजेस पे ज्यादा काम करवाते हैं। फायदा क्या होता है फिर उनको, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके प्रॉफिट बहुत ऊपर चले जाते हैं। इन रूरल एरिया से आने वाले लोगों की भी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन बहुत कम रेट के साथ बढ़ती है। इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रॉफिट बहुत हाई रेट के साथ बढ़ते हैं। तो ये जो गैप है इनकी इनकम का, वो और ज्यादा वाइडन हो जाता है। लेकिन ऐसा कब तक होगा? ऐसा तब तक होगा जब उन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जब उनके पास क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स नहीं है। जैसे ही वो स्किल डेवलप होता है उन लोगों में, तो वो फिर हाई वेजेस डिमांड करें, हाई बेनिफिट्स डिमांड करेंगे। तो वही रूरल एरिया से आने वाले लोगों की आप इनकम थोड़ी ऊपर जाना शुरू करेगी। इंडस्ट्रियलिस्ट का वेज बिल हाई होगा तो उनके प्रॉफिट्स थोड़ा नीचे आना शुरू होंगे। तो ये जो गैप है, ये गैप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो डिस्पैरिटीज इसलिए कम होती है। सो रूरल अर्बन एरिया अर्बन माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए उसने ये बताया था कि शुरू में डिस्पैरिटीज डेवलपमेंट के साथ साथ बढ़ती हैं। तो इसका मतलब है जब कंट्री डेवलप होना शुरू होती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक दफा कम होता है, लेकिन जब एक खास टाइम तक पहुंच जाते हैं तो फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होना शुरू